is the unemployment or employment. So employment means if you are engaged in an economic activity. लिख लो, employment means if you are engaged in an economic activity. It means contributing something to the GDP. Contributing something to the GDP. Then we have a few concepts which are related to the employment. First we have full employment. कभी डिमांड डिस्कस किया था हमने. डिमांड क्या होता है? What do you mean by demand? Demand, law of demand, supply, law of supply, marginal demand, marginal utility and all. डिमांड क्या होता है? Willing and able to buy. Willing तो सब है, सबको IAS बनना है. Able होगा कुछ नहीं होगा एबिलिटी. दोनों होने के बाद भी आपको मिलेगा IAS या नहीं मिलेगा इज नॉट वेरी श्योर. Similarly, in case of the demand also, you are willing to buy. मुझे भी Audi Porsche लेना है, but ability नहीं है, पैसा नहीं है. So similarly, suppose पैसा है तो demand is also of two types. Willing also, able also, but knowledge नहीं है. Driving ही नहीं आता, purchase करके क्या करेंगे? So it means that is known as the passive demand. Passive demand में क्या problem होता है? You don't have the information. इसीलिए advertisements होते हैं. Advertisement, the purpose of the advertisement is to convert the passive demand into active demand. Similarly, in case of the employment also, you are willing to work as well as work will be provided. दोनों सिनेरियो होगा तो full employment हो जाएगा किसी इकोनॉमी में. लिख लो इसके सामने willing plus able to work. Full employment means those who are willing and able to work. Then we have the underemployment. Underemployment means दोनों में से एक कंडीशन नहीं मिल रहा है, या तो एबिलिटी नहीं है या विलिंगनेस नहीं, दोनों में से एक नहीं है. Is known as the underemployment. And then we have, or we can say underemployment is lack of full employment. And then we have unemployment. कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं है आपके पास. Then we have the types of unemployment. So first we have is the frictional unemployment. So frictional unemployment क्या होता है? Friction is between two entities. हवा में तो होगा नहीं friction. So friction क्या होगा? दो jobs के बीच में जो unemployment होता है उसको कहते हैं frictional unemployment. लिख लो इसको. Frictional unemployment is between two jobs. Or when you are shifting the job, the free time between two jobs is known as frictional. ब्रैकेट में लिखो, it is temporary unemployment. Temporary unemployment. Also, this may lead to more productivity in the future. अब क्या करोगे? अनएम्प्लॉयड होगे, यहाँ पे मास्टर्स करोगे, वापस जाओगे फॉर्मल सेक्टर में, सो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. So it may lead to more productivity in the future. Second we have is the structural unemployment. Structural unemployment क्या होता है? स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक. स्ट्रक्चर मतलब डिमांड कुछ और चीज की है, सप्लाई कुछ और हो रहा है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद द यूपीएससी. जो पढ़ा है वही पूछना चाहिए, कुछ भी पूछता आर्ट एंड कल्चर. क्या करोगे आर्ट एंड कल्चर में? एसएससी वाले कुछ पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री, 20 क्वेश्चन पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, क्या करोगे? टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा. तो सिमिलर वी हैव इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हिच मींस डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच. तो डिमांड है सर्विस सेक्टर की और सप्लाई है नॉन स्किल्ड एग्रीकल्चर लेबर की. सो इट मीन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गया है इंडियन इकोनॉमी का. दैट इज वाई इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. लेबर है नॉन स्किल्ड, रिक्वायरमेंट है सर्विसेज में स्किल्ड लेबर की. सो वो गया स्ट्रक्चरल. इट मीन्स मिसमैच बिटवीन द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड स्किल्स. अब यूजुअली स्ट्रक्चरल चेंजेस क्यों आते हैं इकोनॉमी में? न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. सो स्ट्रक्चरल unemployment is good for the economy or bad for the economy?
सोचो। हाँ, डिपेंड तो नहीं करता, बट हाँ, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज गुड फॉर द इकोनॉमी और बैड फॉर द इकोनॉमी? लो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, अदरवाइज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं होगा इकोनॉमी में कभी भी. सो ए लो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज गुड फॉर द इकोनॉमी because it enhances new technology, it enhances the consumption of new technologies. नीचे लिख लो फर्स्ट एंड सेकेंड. इट मीन्स फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल, are largely unavoidable in the economy. नेक्स्ट वी हैव इज द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ये क्या होता है? बिजनेस साइकिल पढ़ा था. इन केस ऑफ हाँ बूम आएगा, उसके केसेस में डिप्रेशन आएगा, रिसेशन आएगा. इस टाइम पे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, फिर वापस से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो रिसेशन के टाइम पे या डिप्रेशन के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको कहते हैं साइक्लिकल. सो इट इज बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन एंड रिसेशन, slowdown and recession in the business cycle. Then we have seasonal unemployment. वो क्या होता है? किसी में भी होता है, बट एग्रीकल्चर के केस में सपोज रबी खरीफ आया, बीच के टाइम में खाली हो, इज नोन एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. भी हाँ, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ही एमजी नरेगा है, बिकॉज वहाँ पे जो लॉस हो रहा होगा उसके लिए वी हैव द एमजी नरेगा. सो इट इज़ ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ प्रोडक्शन. सपोज एक कंपनी है जो सिर्फ एसी बनाती है, सो विंटर में तो काम होगा और समर में काम होगा और विंटर में काम कम होगा. सो वहाँ सैकिंग हो जाएगी एम्प्लॉयज. एंड देन वी हैव द लास्ट वन, बाकी सब उसी के कंपोनेंट हैं. देन द लास्ट वन वी हैव इज द वन विच यू ऑल फील्स, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इस पे क्वेश्चन आया. घर जाते हो तो ऐसा ही लगता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की फीलिंग आती है, दैट यू आर द सोल ब्रेड अर्नर एंड एवरीथिंग ऑफ द हाउस. तुम नहीं होगे तो क्या होगा? सब सुबह से लेके शाम तक काम करते हो, वापस आते हो फिर भी वैसा ही चल रहा होता है वहाँ पे. तो इट मीन्स योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो, कुछ नहीं करते. दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर. इट मीन्स देर इज एन एक्सेसिव लेबर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. निकाल लोगे तब भी कुछ प्रोडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होता. is known as the disguised unemployment. That is, there is a surplus labor not contributing to the productivity of the sector, or not increasing the productivity of the sector. उसके बाद कुछ नीचे ऐसी इंक्रीज करने के लिए कहीं डिफरेंट उसमें आपको मिल जाएगा. एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो तुम लोग कर रहे हो, जॉब छोड़ के बैठे हो, यूपीएससी वाले को कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वी हैव देन वी हैव द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स अवेलेबल नहीं है आपकी जॉब की, वहाँ कहीं लिखा नहीं है, रिलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, इसलिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है. देन टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. तो टाइपराइटर से कंप्यूटर आया, सब टाइपराइटर वाले सब अनएम्प्लॉयड हो गए, ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव. एंड देन वी हैव द अनएम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नोन एज द इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. बाकी सब ये होते रहेंगे. देन वी हैव समथिंग नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स 10th स्टैंडर्ड पास हो फिर भी अनएम्प्लॉयड, उसको कह देंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. सो उसका सब कंपोनेंट हो गया वो. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सम कंसेप्ट, दैट इज द होते क्या हैं ये सब कंसेप्ट, इसको देखेंगे. समझना है, याद करना है. द टोटल पॉपुलेशन वी हैव डी. अब डी में क्या होगा? डिपेंडेंसी भी होगी. लेस देन 15 ईयर्स के चाइल्ड होंगे एंड मोर देन 59 ईयर्स के ऊपर ओल्ड एज होगा. तो उन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा. जब उन दोनों को रिमूव करते हो तो हमारे पास आता है, उसको कहते हैं वर्क एज पॉपुलेशन. इतने काम कर सकते हैं. So work age population is the total population of 15 to 59 years. काम है या नहीं है सेकेंडरी, बट दिस इज द वर्क एज पॉपुलेशन. अब उस वर्क एज में
सब हर एवरीबडी इज नॉट एलिजिबल एंड विलिंग टू वर्क. सो द वन हु इज एलिजिबल एज वेल एज विलिंग टू वर्क, बोथ कंपोनेंट होना चाहिए इसमें. ठीक है, दे आर नोन एज द लेबर फोर्स. वही काम करेंगे बस. ईदर दे आर विलिंग और दे आर एलिजिबल फॉर वर्क, दे आर नोन एज द लेबर फोर्स. अब लेबर फोर्स में होगा कुछ एम्प्लॉयड और कुछ अनएम्प्लॉयड. ठीक है, सो ए इज नोन एज द वर्क फोर्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड. सो एम्प्लॉयड मीन्स वर्क फोर्स एंड बी हो गया अनएम्प्लॉयड. So we have A plus B plus C is the work age population, A plus B is the labor force, labor force equals to employed plus unemployed, employed is also known as the workforce. फिर इसके बाद आता है ये तीन डेफिनेशन जो कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, अदरवाइज मेंस में यूज करेंगे. वी डिस्कस कि वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो रहा है. एग्जैक्टली क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? टोटल वुमेन एलिजिबल फॉर वर्क, एबल एंड विलिंग अपॉन जितना वो वर्क फोर्स है टोटल वुमेन वाला. सो जस्ट लाइक व्हेन आई एम सेइंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इट मींस लेबर फोर्स ए एंड बी विलिंग है एंड एलिजिबल है अपॉन द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन. इट मींस 15 to 59 ईयर्स वाले में. इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. वो क्या होगा? वुमेन लेबर फोर्स अपॉन वुमेन वर्किंग एज पॉपुलेशन. सो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो रहा है. Then we have the unemployment rate. Unemployment कितना होगा? Unemployed, unemployed कौन सा इसमें? B. So B upon the total labor force that we have. So B upon A plus B. साइड में लिख लो. B upon A plus B. और employment rate कितना है? Employed upon the workage population that we have. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है? आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नीचे वर्किंग एज आ रहा है. वर्किंग एज मीन्स 15 to 59 ईयर्स. ऊपर लेबर फोर्स है. लेबर फोर्स मीन्स विलिंग है और एलिजिबल है दोनों के केस में. सो ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी नेक्स्ट वाले के केस में. एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? जितना एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड है अपॉन टोटल बाय द लेबर फोर्स दैट वी हैव. ठीक है, ठीक है. अब हो गया उसको मेजर कैसे करते हैं. हाउ टू मेजर दीज अनएम्प्लॉयमेंट और वी कैन से द एम्प्लॉयमेंट. सो देयर आर 3 मेथड्स. एक तो हो गया यूजुअल स्टेटस मेथड, सेकंड हो गया करंट वीकली स्टेटस एंड थर्ड वी हैव इज द करंट डेली स्टेटस. ब्रॉडली बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है. यूजुअल स्टेटस मेथड में क्या होगा कि आप पास्ट 365 डेज में अगर आपने 30 डेज का भी काम किया है सो यू विल बी रिगार्डेड एज द एम्प्लॉयड. ठीक है, अंडर दिस यूजुअल स्टेटस में आपने एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया. समझ लो बस, ज़्यादा लिखना नहीं है, पता होना चाहिए कि क्या होता है. इसके केस में एक तो होगा प्रिंसिपल वर्क, एक होगा आपका सेकेंडरी वर्क. सेकेंडरी वर्क क्या हो गया? जैसे मैं एग्रीकल्चर लेबर हूँ, सो मेरा प्राइमरी वर्क हो गया एग्रीकल्चर और सब्सिडरी या सेकेंडरी हो गया एमजी नरेगा. सो आप दोनों को काउंट करोगे तो ज़्यादा इंक्लूसिव होगा. थोड़ा सा लिखवाऊंगा अभी बस समझ लो. सो यूजुअल स्टेटस में 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो. यूजुअल स्ट्रक्चरल एंड स्टेटस में आगे चलूँगा. एक हो गया मेरा प्रिंसिपल वर्क दैट इज एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल. दूसरा हो गया मेरा एमजी नरेगा दैट इज द सब्सिडरी और सब्सिट्यूट वर्क. दोनों मिला के अगर आपने 30 डेज भी काम किए हैं लास्ट 365 डेज, उसको आप यूजुअल स्टेटस मेथड से एम्प्लॉयमेंट बता दोगे कि दिस गाय इज एम्प्लॉयड. सेकेंड आया मेरा करंट वीकली स्टेटस. करंट वीकली स्टेटस में क्या होगा? इफ यू हैव वर्क फॉर 1 आवर इन लास्ट 7 डेज तो आप एम्प्लॉयड हो गए. ठीक है, अब दोनों के केस में आपने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं किया आपने कि यार एक हफ्ते में कितने नंबर ऑफ आवर्स आप काम कर रहे हो. सो सपोज 1 आवर से ज़्यादा वाला कोई तो 4 घंटे काम कर रहा होगा. एनीबडी मस्ट वर्क फॉर 2 आवर्स, कोई 10 घंटे काम कर रहा होगा. सो ये कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? वो डिफरेंस करने के लिए आप लेके आए और द इंटेंसिटी ऑफ वर्क इज बीइंग मेजर थ्रू द करंट डेली स्टेटस. इसमें आपने डिटेल में बता दिया कि यार अगर 1 से लेके 4 आवर्स तक आपने काम किया है तो उसको हाफ डे एज्यूम करूँगा. 4 आवर्स से ज़्यादा आपने काम किया है तो उसको फुल डे एज्यूम करूँगा. अगर 1 आवर से कम काम किया तो उसको अनएम्प्लॉयड एज्यूम करूँगा.
सो फर्स्ट मेथड इज देयर यूजुअल स्टेटस, ब्रॉडली है, लास्ट 365 डेज का काउंट करता है, उसको थोड़ा नैरो डाउन करके हमने करंट वीकली स्टेटस मिला है जो लास्ट वीक का मेजर करता है। इसको इंटेंसिटी मेजर करने के लिए वी हैव इज ना करंट डेली स्टेटस वाला मेथड। ब्रॉडली समझ गए? डाउट है तो पूछ लो, लिखो। यूजुअल स्टेटस के सामने लिखो यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडी, यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस, यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस यूपीएसएस। रेफरेंस पीरियड इज 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में अगर काम किया आपने उसको मेजर करते हैं। इट मीन सर्वे इज कंडक्टेड फॉर लास्ट 1 ईयर। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि लास्ट 1 ईयर में काम किया या नहीं किया। देन इसके दो कंपोनेंट है, एक प्रिंसिपल और एक सब्सिडरी। एग्जाम्पल प्रिंसिपल का हो गया एग्रीकल्चर, सब्सिडरी हो गया एमजी नरेगा। So if we लिखो, if we have very high unemployment, if we have very high unemployment, through usual status oblique UPSS, it is called chronic unemployment. It is called chronic unemployment. Then second we have is the current weekly status. Current weekly status. इसमें क्या होता है? 7 days. Reference period is 7 days. And activity status is 1 hour. 1 घंटे भी काम किया तो employed. So this current weekly status is good to measure seasonal unemployment. It is good to measure seasonal unemployment. Otherwise seasonal तो कैलकुलेट ही नहीं होगा, उसमें तो 1 ईयर में अगर 30 डेज भी काम किया तो एम्प्लॉयड, तो उसमें मेजर तो नहीं हुआ। लास्ट वीक में काम किया या नहीं किया, इससे यू विल गेट द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। एंड देन वी हैव द करंट डेली स्टेटस। करंट डेली स्टेटस, इसमें भी रेफरेंस पीरियड इज 7 days. इसमें देखो, here we measure the intensity and person's days work यहाँ पर्सन काउंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लेस देन 1 आवर किया है तो काउंट नहीं होगा, 1 to 4 आवर किया है तो हाफ डे काउंट होगा, और मोर देन 4 आवर किया है तो फुल डे काउंट होगा। सो सपोज करो वीक का फर्स्ट डे है, वीक का सेकेंड डे वी हैव 3rd 4th 5 6 and 7, एंड यहाँ नंबर ऑफ आवर काउंट करेंगे। सपोज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक you have work for 3, and then we have 5, then we have 2, then we have 0.5, then we have 4 6 3। अब बता दो मुझे कितना हो गया टोटल, कितना पर्सन्स डेज काम किया लास्ट वीक में। 3 को कितना काउंट करोगे? हाफ। 5 को काउंट करोगे 1, इसको हाफ, इसको 0, इसको 1, इसको 1, इसको हाफ। कितना हुआ टोटल? 1 2 3 4.5। सो 4.5 पर्सन्स डेज वर्क हुआ है। ठीक है, समझ गए ब्रॉडली तीनों में डिफरेंस? ये इंटेंसिटी मेजर कर रहा है, नॉट ओनली नंबर ऑफ पर्सन जिसको काम मिला, बट पर्सन्स डेज देख रहा है कि आज की इकोनॉमी में कितना पर्सन्स डेज वर्क हुआ। ठीक है, सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखना है, सो बेस्ट मेथड कौन सा हो गया? या सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन दिखाएगा? ये दिखाएगा। सो दिस CDS मेथड गिव्स यू द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देन वी हैव द फिलिप कर्व एंड ऑल, ये हो गया। एंड देन वी हैव द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। एक्चुअली वो मेंस के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, बाकी हमने कवर किया है ऑलरेडी। सो इन
So we have all these schemes actually basically through which the government wants to decrease the poverty or increase the employment we have. So first of the scenario we have this thing 1990s में concept आया था Washington consensus, according to which private sector को grow करो, उससे trickle down होके नीचे आएगा, so जो poor हैं उसकी growth हो जाएगी. So government is not directly giving the subsidies, but government is providing the alternative mechanism. जैसे आपने मेक इन इंडिया लेके आया, मेक इन इंडिया को काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो लोगों की पॉवर्टी डिक्रीज होगी और मनी विद देम इज गोइंग टू इंक्रीज. सो फर्स्ट के लिए एक्सेलरेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ये सारी स्कीम्स लेके आया. वी हैव मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. देन वी हैव इंडियाज एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी, वो पुराने वाला गरीबी हटाओ वाला एंड ऑल दीज प्रोग्राम्स. डायरेक्टली आपको पॉवर्टी रिमूव करना है, सो डायरेक्टली पॉवर्टी रिमूव करने के लिए भी हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेके आए, डीबीटी मैकेनिज्म एंड ऑल. देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ये सब तो ठीक है, बट अनलेस एंड अनटिल देयर विल बी ए डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. एजुकेटेड ही नहीं है, करोगे क्या? हेल्दी नहीं है, करोगे क्या? तो यहाँ पे हम सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे एंड ऑल दिस, वाटर पे, सैनिटेशन पे एंड ऑल. And then we have the income generation through various poverty alleviation programs we have. So suppose करो आपने रूरल एरियाज में कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम स्टार्ट करा दिया, ठीक है. और वी हैव स्टैंड अप स्कीम ऑल्सो कि आप रूरल एरियाज में टारगेटेड कर रहे हो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जैसे आप लेके आ रहे हो, ठीक है. So all these schemes are there, as well as mitigation of vulnerabilities and shocks through social security. देखो, a huge population is just at the brink of just above poverty line. मानसून खराब तो 10% population नीचे आ जाएगा, because 50% population is dependent upon agriculture. So you need to mitigate the vulnerabilities. इसीलिए हम कहते हैं कि food grain से लिए complement करो आप livestock से, बिकॉज लाइफ स्टॉक में वल्नरेबिलिटी कम होती है, बिकॉज वो मानसून डिपेंडेंट नहीं है. सिमिलर सिनेरियोज वी हैव, द गवर्नमेंट इज फोकसिंग अपॉन द मिटिगेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज एंड शॉक्स थ्रू द सोशल सिक्योरिटी. इसीलिए गवर्नमेंट पेंशन देती है, इसीलिए गवर्नमेंट लेके आया दिस दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई, कि आप सोशल सिक्योरिटी दे दो ताकि वल्नरेबिलिटी डिक्रीज हो जाए. जैसे यूजली एमफिल लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, जॉइंट दिस रिसर्चर्स के टाइम पे आपको 25,000 देती है, 35,000 देती है, पॉकेट मनी जो मिलती है आपको, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज टू डिक्रीज द वल्नरेबिलिटीज एंड द शॉक्स थ्रू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन.